Good morning, class 10th. Today we begin with our unit number 6, that is email messaging intermediate. Before beginning with this unit, let me tell you each and everyone that we are finished with our half-yearly syllabus, that is unit number 1, unit number 2, unit number 3 and unit number 5. So now let's begin with our unit number 6, that is email messaging intermediate. So in this unit, first session that we are having is working with calendar. So let's start reading this unit session. Using a calendar application or calendar as a feature of your emailing application adds efficiency to your work and communication as a profession. Calendar help keeping track of appointment, tasks, important events easily. You can set up reminder for important date. So we can use our calendar with our email. So how it is useful? When we are using calendar app feature with our email application, it adds efficiency. ठीक है. सेकेंड, आप जितने भी आपके अपॉइंटमेंट्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं. मान लीजिए आज से ही 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट है आपका, तो यू कैन ईजिली मार्क ऑन द कैलेंडर एंड सेट अ रिमाइंडर ओवर दैट, कि फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस दिन मेरी अपॉइंटमेंट है. आप अपने टास्क को, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को, सबको रिमाइंडर के तौर पे अपने कैलेंडर में सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, another powerful feature of an online calendar is that it let you collaborate with others. You can share the calendar with others seamlessly over email, and all the people involved in the meeting, task or event are equally reminded at the deadline and any updates in it. So let me tell you what is collaboration. Collaboration means when individual people working together, okay, या फिर सहयोग करना, cooperation करना, ठीक है. So how you can cooperate with calendar? You can share the calendar with anyone other. आप ओवर ईमेल, आप अपने ईमेल के थ्रू अपने कैलेंडर को शेयर कर सकते हैं. एंड बाय शेयरिंग योर कैलेंडर, जो भी टास्क और रिमाइंडर्स उसमें मार्क होंगे वो बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा जो उस टास्क में या उस मीटिंग में आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे. सो दे ऑल्सो कम टू नो अबाउट द अपडेट्स एंड द डेडलाइंस ऑफ द task. Next we are having, there are many online calendars application like Google Calendar. To learn and explore about it, follow the link. We are having a link here. Try to open this link in your mobile. Okay, here is the link, https. Okay student, जब हमारे पास https है, it means it is a secure site. बट अगर सिर्फ ये http होता है, it is not a secure site. जब इसके साथ s लगा होता है, it means it's a secure site. So we are having https support.google.com calendar. Here we shall learn how MS Outlook 2013 calendar works. Outlook calendar feature is available even if you do not have any email account added to Outlook. However, ठीक है, ऐसा नहीं है. कैलेंडर फीचर सिर्फ तभी वर्क करेगा व्हेन यू आर हैविंग ईमेल अकाउंट. ठीक है, ये वैसे भी आपका फीचर्स आप इसमें देख सकते हैं. यू विल नॉट एबल टू शेयर इट विद अदर विदाउट एन ईमेल अकाउंट. You can check, you can use it, but you cannot share it without an email account. So what is the procedure? Here is the procedure. First you have to click on the start, go on start. पहले आपको किसके पास, पहले कहाँ जाना है आपको? You have to go on start. Once you go on start, you have to go on all programs. After all programs, you have to go on Microsoft Office. In Microsoft Office, you found one thing, that is MS Outlook 2013. You have to click on this. At the bottom of the folder pane, click on the calendar icon. नीचे क्या आ रहा होगा? एक calendar icon आ रहा होगा, and you have to click over that calendar icon. You can check here, calendar interface will appear. Here it is. Okay,
ऐसा फीचर बन के आएगा। ये पूरा का पूरा आपका कैलेंडर बन के आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ ऑफ नवंबर 2018 और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होंगी। अब आपको कोई भी टास्क एडिट करना है या कुछ भी करना है, यू कैन ईजिली डू इन अ पर्टिकुलर फील्ड। Various calendar arrangement. Now calendar layout or view can be arranged by using following options in arrange icon. Which icon we have to use? एक आप चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि टैब्स क्या हैं आपके और ग्रुप्स क्या हैं। आपके पास टैब कौन सा है, सॉरी यू आर हैविंग होम टैब। होम टैब में आपको कहाँ जाना है, अरेंज ग्रुप में। पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे होम टैब पे। होम टैब पे जाने के बाद आप किस में जाएंगे, अरेंज ग्रुप में, ठीक है। अवेलेबल, नेक्स्ट वी आर हैविंग डे, इट शोज़ करंट डे विच कैन बी डिवाइडेड इनटू स्पैन ऑफ मिनट्स। अब आप जो करंट आपका डे है आप उसको किस में डिवाइड कर सकते हैं, इनटू स्पैन ऑफ मिनट्स। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग, जो भी चीज़ें मैं ब्लॉक्स में मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये कहीं नहीं तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, ठीक है। स्पैम ऑफ मिनट्स, तो डे क्या करता है, डे शोज़ द करंट डे एज वेल एज इट कैन डिवाइड इनटू स्पैम ऑफ मिनट्स। देखिए यहाँ पे ये गिवन है, स्पैम 30 मिनट्स का है, 15 का, 10 का, 6 मिनट्स का, 5 मिनट का, ठीक है। इतने में आपका जो डे है पूरा वो अलग अलग टाइम स्लॉट्स में भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्क वीक। वर्क वीक इट अज्यूम सैटरडे एंड संडे एज नॉन वर्किंग डेज। वर्क वीक क्या करता है, आपके सैटरडे और संडे को क्या मान के चलता है, नॉन वर्किंग डेज, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस में दीज आर द वीकेंड्स, तो इस पर काम नहीं होता है। एंड डज नॉट शो दैम, इट डिस्प्ले ओनली 5 वर्किंग डे ऑफ द करंट वीक। कितने वीक्स डिस्प्ले करता है, 5 वर्किंग डेज, ओके। यू कैन चेक सैटरडे संडे एज वीकेंड्स, ऑफ डेज, नॉन वर्किंग डेज, ठीक है। एंड डिस्प्ले ओनली 5 डेज। कितने डेज शो करता है, सिर्फ 5 डेज शो करता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग वीक। जब हमारे पास डिफरेंस देखिए, पहले जो है डे वो आपको करंट डे बताता है। वर्क वीक में हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 5 वर्किंग डेज हैं। वर्क वीक में सिर्फ 5 वर्किंग डेज होते हैं, बाकी 2 दिन का ऑफ होता है। बट जो हमारी वीक है उसमें हमारे पास कितने डेज शो होते हैं, 7 डेज शोज होते हैं कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग मंथ। दिस शोज़ द एंटायर करंट मंथ। ये आपको क्या दिखाता है, पूरा करंट मंथ शो करता है। मैं फिर से अंडरलाइन कर दे रही हूँ, ध्यान रखेंगे आप किस चीज़ में क्या क्या पढ़ना है। इट शोज़ करंट मंथ। नेक्स्ट है शेड्यूल व्यू। शेड्यूल भी क्या होता है, दिस व्यू इज़ यूजफुल व्हेन यू आर शेड्यूलिंग अ मीटिंग और अ अपॉइंटमेंट। जब आप कोई मीटिंग या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं तब के लिए यूज़फुल होता है, बिकॉज इट सेट अ रिमाइंडर। तो आप जब शेड्यूल व्यू में क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी मीटिंग्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, टास्क हैं, डेडलाइन है, वो सब इसमें क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। सेटिंग कॉमन ऑप्शन ऑफ कैलेंडर। Some common option like working time duration, working days, first day of the week, comma, default, reminder time, adding holidays, various display option and time zone related setting extra can be set in Outlook option windows by using option in option file tab. Means आपके फाइल टैब में आपके पास क्या होगा, एक ऑप्शन, ठीक है। फाइल टैब में आप किस पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे। वहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स यू कैन कस्टमाइज योर कैलेंडर अकॉर्डिंग टू योर विश।
Next, here we are having few questions like 1 to 3. First question, open the calendar in Outlook and try out its various views. Okay, दिस इज़ अ होमवर्क. आप जब ये काम अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि आपका कैलेंडर वर्क वीक में कैसे शो हो रहा है, वीक में कैसे शो हो रहा है, डे में कैसे शो हो रहा है, शेड्यूल व्यू में कैसे शो हो रहा है, मंथ व्यू में कैसे शो हो रहा है. नेक्स्ट वी आर हैविंग फॉर कैलेंडर, सेट अप द वर्क टाइम फॉर फ्रॉम द मॉर्निंग 7 एंड आफ्टरनून 3 एंड सेट अप सैटरडे वर्किंग डे. ओके, ये वाला काम आप कैसे करेंगे? फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू गो ऑन दी फाइल टैब, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, वहाँ उसकी आप सेटिंग्स चेंज करके उसको कस्टमाइज़ कर देंगे. थर्ड वी आर हैविंग सेटअप वेरियस हॉलीडेज इन योर आउटलुक कैलेंडर. फॉर दिस आपको क्या करना है, अपने कैलेंडर्स में कुछ ना कुछ शेड्यूल्स मार्क करने हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. दिस इज ऑल अबाउट योर सेशन नंबर फर्स्ट. टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेशन नंबर सेकेंड. फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी just WhatsApp or in the comment box mention them. Thank you students.